that is 2, and the set itself. So as you can see, A के कितने सबसेट्स हैं? 4. तो इनमें से ये सारे कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट, एंड दिस इज कॉल्ड improper subset. The set itself is always improper subset of a set. तो proper subset को कैसे define करोगे? How would you? हाँ, otherwise more technically correct क्या हो सकता है? A proper subset of a set will be those subset in which there is at least one element left out, which is otherwise present in the given set. एक भी एलिमेंट अगर छूट जाएगा तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट. लिख लो. So या फिर all the subsets apart from the All sub the, all the subsets apart from the set itself are. हाँ वो भी बोल सकते हो. लिखो. A proper subset. A proper subset is that subset. A proper subset is that subset which does not contain at least one element, which does not contain at least one element which is otherwise present in the given set, which otherwise present in the given set. और जैसे जस ने बताया कि other than the set itself, all the subset are proper subset. So other than itself, whatever subsets are there, those are proper subset. तो as such, number of proper subset कितने होंगे? So number of proper subset का फॉर्मूला हो जाएगा 2⁻n-1, बिकॉज एक ही सबसेट ऐसा होगा, the set itself, which is always improper subset. So what is improper subset? Improper subset would be the set itself, the subset itself, है ना? So subset itself is called improper subset. तो हर सेट के 2⁻n सबसेट्स होंगे, उनमें से सेट इटसेल्फ हमेशा इम्प्रॉपर सबसेट होगा. जो सेट इक्वल होता है दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट, राइट? एंड ऑल अदर विल बी प्रॉपर सबसेट्स. तो 2⁻n इम्प्रॉपर सबसेट हो गए, एंड ओनली वन सबसेट वुड बी इम्प्रॉपर सबसेट. देख लो, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. अब ऑपरेशंस ऑन सेट्स. लिख लो, ऑपरेशंस ऑन सेट्स. So there are various operations which we can do on sets. Like first one is union. It is represented by U. Then we have intersection, inverted U. Then we have complement of a set. Then we have difference of sets. So various operations we can carry on
with the sets. Union, intersection, complement, and difference of two or more sets. इसके पहले एक और चीज, यूनिवर्सल सेट. Universal set is represented by U, capital U, and it is superset of all the sets under consideration. लिख लो. A universal set, a universal set is superset of all the sets under consideration. Universal set is superset of all the sets under consideration. एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे वी आर डिस्कसिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑल्सो. बहुत सारे सेट्स हम कंसिडर कर रहे हैं. नेचुरल नंबर तो यू आर अवेयर, वन से शुरू होते हैं. होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स जीरो प्लस माइनस एंड प्लस माइनस टू. क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. क्यू इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. कैसे डिफाइन करते हो? दे आर इन द फॉर्म ऑफ a by b, where a and b both are integers but b cannot be zero. So these are rational numbers. ठीक है. रैशनल नंबर का सेट q से रिप्रेजेंट होता है. और जो नंबर रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, दोज आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर का सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हो? t से. कैपिटल T इज द सिंबल फॉर इरैशनल नंबर्स. तो रियल नंबर में से हम डिफरेंस निकाल दें रैशनल नंबर का, तो वो बन जाएगा set of irrational number. Root 2, root 3, 2 की power 1 by 5, all these are irrational numbers. रैशनल नंबर को तुम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है. या तो वो टर्मिनेट करेंगे, लाइक इफ आई राइट 1 by 2, so they'll be terminating like this, or else they will be recurring. ये रेकर करेगा इस तरह से, रिपीटिंग. So a rational number would be either terminating on recurring or recurring. जबकि irrational नंबर में क्या होगा? irrational नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा. जैसे कि कोई भी वैल्यू रूट टू जैसे में ले लो. अगर रूट टू की वैल्यू तुम अगर फाइंड करोगे तो 1.414 आएगा. उसके बाद कुछ और नंबर आ जाएंगे. मतलब इट वोंट बी रेकरिंग and it won't be terminating also. So it will be irrational number. Tell me, pi is 22 by 7. 22 by 7 rational है या irrational है? Rational. 22 by 7 rational और irrational? irrational. कैसी बातें करोगे? फिजिक्स का डर लग रहा है तुम्हें, लगता है? Irrational. इट इज रैशनल. बहुत जोर से रैशनल है ये तो, कोई बता देगा. 20 a by b फॉर्म. a by b फॉर्म, हाँ. ये बहुत जोर से रैशनल है, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट ये इक्वल टू पाई भी है. पाई जो है वो पाई क्या है? Irrational. पाई इरैशनल है. अब तुमने प्रूव कर दिया कि दैट इरैशनल एंड रैशनल नंबर इक्वल हो गए. ऐसा तो कभी हो नहीं सकता था. वो तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है. हाँ, इसका ये रीजन है कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7. पाई इज नॉट एग्जैक्टली 22/7. वो पाई अप्रोक्सीमेटली है. तो पाई होगा इरैशनल, 22/7 हो जाएगा रैशनल. तो अगर मेरे सपोज कंसिडरेशन में कई सारे सेट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरैशनल, इन सारे सेट्स का सुपरसेट क्या होगा? ऐसा सेट जो इन सबको Real कंटेन, numbers. सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना.
So that will be called universal set for this question. In a question, if you have natural numbers also, whole numbers also, integers also, complex also, and irrational also, इन सबका superset होगा set of real numbers. That will be the universal set. The universal set is always supersets of all the sets under consideration. So that is the meaning of universal set. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो आई हैव 3 सेट्स. एक सेट है 1 2 3. दूसरा सेट है 2 3 5 7 9. एंड थर्ड सेट इज 1 3 7 6 8 10. राइट. तो इन सब का यूनिवर्सल सेट आई कैन से विल बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 to 10. इन सब का सुपर सेट मतलब जितने भी सेट अंडर कंसिडरेशन है वो उनको कंटेन करेगा. दैट विल बी कॉल्ड सुपर सेट एंड द सिंबल इज दिस. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशनल सेट्स करते हैं. सबसे पहले यूनियन. यूनियन ऑफ टू सेट्स. इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, दैट्स हाउ यू राइट ए यूनियन बी. इसको कैसे रीड करोगे? ए यूनियन बी. एंड मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसको? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to b. This symbol is for or. Inverted v is for or. So A union B is basically all those elements of set A and set B, and then whatever common are you write only once, because in a set repetition of elements is meaningless. कहने का मतलब ये हुआ कि if some element x, random element x, A union B को belong कर रहा है, it would imply that x या तो A को belong करेगा या फिर x B को belong करेगा और both. That is the meaning of A union B. अगर A union B का कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट या तो A का एलिमेंट होगा या B का या दोनों का होगा. ठीक है. और दोनों का हो तो हम विल राइट ओनली वंस. दैट इज द मीनिंग ऑफ A union B. यूनियन ऑफ सेट से हमेशा हमें बड़ा सेट मिलेगा. whenever you find A union B, it would be bigger than A or B or maybe equal also. But कभी भी छोटा सेट नहीं आएगा. तो यूनियन ऑलवेज गिव a bigger set. A union B. टेल मी. अच्छा कोई एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज A है 1 2 3, B है 2 4 5 6 7. So what will be A union B? 1 2 3 4 5 6 7. Right. Now you can see that A union B, A का भी सुपर सेट है और B का भी सुपर सेट है. So whenever you find A union B, then A would be always subset of A union B. Also B भी A union B का ही सबसेट होगा. तो A union B में A भी कंटेन होगा और B भी कंटेन होगा. So union of sets always give you the bigger set. In general, tell me A union phi क्या होना चाहिए? A union A. A क्या होगा? A union यूनिवर्सल सेट क्या होगा? The first one would be A. Second ओके. one would also be A. But the अगर third किसी भी would be सेट में union. नल सेट का यूनियन करोगे यही आएगा. किसी सेट का अपने साथ ही यूनियन ए आएगा. एंड दिस लास्ट Universal set. लास्ट विल यूनिवर्सल बिकॉज इट गिव्स यू बिगर सेट. यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट है. सो विल बी यूनिवर्सल सेट. एक और चीज, इफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए है, देन व्हाट डज इट मीन? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी? B is the subset of A. सोचो. दिव्या तुम बताओ. अथर्व
जस की बातों में मत आना है, गलत भी बता सकती है। ए यूनियन बी ए से बड़ा है। Um, ए यूनियन बी इक्वल टू ए, सॉरी। अगर sir, ए I think she यूनियन, is right that B is a subset of A. क्या बात कर रही हो लावण्य, तुम सही बात बताओ। Sir, A equals to B? ए इक्वल्स टू बी, वो पॉसिबिलिटी है। ए इक्वल्स टू बी पॉसिबिलिटी है, So B is a null set. वो भी हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट प्रॉपर आंसर है वो जस ने बता दिया कि ए यूनियन बी, अगर ए आ रहा है इसका मतलब ए बहुत बड़ा सेट है, बी ए का सबसेट है। बी मतलब सेट ए में कंटेंड है। तो दिस इज नाउ, अर्थव अथर्व ने जो बताया वो भी सही था। बी नल सेट होगा तब भी सेम आंसर आएगा, बी इक्वल टू ए होगा तब भी वही आंसर आएगा। बट द मोस्ट प्रिसाइज वुड बी, मोस्ट जनरल यू कैन से वुड बी दिस, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो दिस वाज यूनियन ऑफ सेट्स का कौन सा फॉर्म है ये बताना मुझे। रोस्टर फॉर्म था या क्या था ये था सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। A intersection B means X such that X belongs to A and X belongs to B. This symbol is for AND. ये और के लिए था, ये AND का सिंबल है। इसको अगर तुम कट कर दोगे तो ये फॉर ऑल बन जाएगा। एप्सिलन यू नो ऑलरेडी बिलोंग्स टू, दिस इज सबसेट ऑफ। Yeah, for the union, you told us reverse V would be all. हाँ, वो उल्टा वाला होगा और का। यूनियन में इट विल बी V, फॉर इंटरसेक्शन वुड बी इन्वर्टेड V। कहने का मतलब अगर रैंडमली हमने कोई एलिमेंट पिक किया सेट A इंटरसेक्शन B का, इट वुड इम्प्लाई कि X A को भी बिलोंग करे एंड X B को भी बिलोंग करे। कहने का मतलब कॉमन एलिमेंट एंड, ठीक है, वो और था। इसका मतलब A इंटरसेक्शन वुड बी सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो इंटरसेक्शन से हमें हमेशा छोटा सेट मिलेगा, बिकॉज कॉमन एलिमेंट्स जरूरी नहीं कि कम भी हो सकते हैं, है ना। जो स्मॉलर सेट है उससे तो कम ही आएगा ना। अगर सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो इंटरसेक्शन भी 3 से छोटा ही होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ऑलवेज गिव द स्मॉलर सेट। इफ ए इज 1 3 5 6, बी इज 2 4 3 7, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? Three. बस। सो ए इंटरसेक्शन भी हमेशा स्मॉलर सेट आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एंड इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, व्हाट डज इट इंप्लाई? इट बी नल सेट, है ना। सो द फर्स्ट का आंसर तो हो गया फाई। सेकंड का A, A, and then last ए इंटरसेक्शन बी अगर ए है, इसका मतलब क्या आंसर? A is the subset of B. ए सबसेट ऑफ बी। भाई इंटरसेक्शन से हमें छोटा सेट मिलता है, मैं स्मॉलर, तो आउट ऑफ ए एंड बी ए छोटा है। इट एम्प्लाइज दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है अथर्व, Yes, sir. यहां तक की कहानी क्लियर? आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट इज
थर्ड ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट के पहले वो कर लो या तो डिफरेंस ऑफ सेट्स कर लो। क्या हुआ सिया? तुमने तो तुम्हें तुम्हें तो बता हुआ रास्ता। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसको कैसे रीड करोगे? ए माइनस बी मत बोलना, नाराज हो जाएगा फिर मैथ्स। ए माइनस बी नहीं है ये है ए डिफरेंस बी। दिस इज ए डिफरेंस बी। हम्म, नहीं नहीं वो भी नहीं है। इसका मतलब हुआ x such that x belongs to a and x does not belong to b. The symbol you know is for and. समझ के बताओ क्या इसका मतलब क्या हुआ? All the elements in क्या A बात है, are in B. बादाम खाती है रोजाना 5-6 ये? तुमने नहीं सही बोला है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ हिंदी में, दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, इसको यहाँ नीचे लिख लो। दोज एलिमेंट्स ऑफ set A which are not in B। ये काम आएगा। A के वो एलिमेंट जो कि B में नहीं है। दिस विल अंडरस्टैंड बाय टेकिंग सम एग्जांपल। ठीक है, मान लो सेट A इज 1 2 का 4 एंड सेट B इज 1 2 5 6 7 8। टेल मी व्हाट विल बी A डिफरेंस B? हाँ, 4। सेट A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, एंड व्हाट विल बी B डिफरेंस है? B के वो एलिमेंट जो कि A में नहीं है, 5 6 7। तो नाउ यू अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। B डिफरेंस A भी लिख देता हूं। B डिफरेंस A का मतलब हुआ x such that x belongs to B and x does not belong to K। That is, those elements of set B which are not in A। ये इसका मतलब है। And you'll find that A difference B इंटरसेक्शन B डिफरेंस से हमेशा क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? इंटरसेक्शन वाला कॉमन एलिमेंट्स। A डिफरेंस B और B डिफरेंस से हमेशा नल सेट आएगा। Null. यस, एंड there's a term called symmetric difference of two sets। एंट्रेंस में अक्सर क्वेश्चन आता है इस पे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B। इसको ऐसे लिखेंगे A डेल्टा B। Symmetric difference of two sets is represented by A delta B, and it is A difference B union B difference है। Symmetric difference of two sets का फॉर्मूला है A difference B union B difference है। तो इसमें तो वो सारे मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो नहीं, कॉमन वाले नहीं आ रहे हैं, वही मतलब एक्सक्लूडिंग दैट सारे होंगे ना। एक्सक्लूडिंग कॉमन वाला आ रहा है ना। तो सीधा A इंटरसेक्शन B नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि यूनियन से। हाँ, वही हो गया अल्टीमेटली। A यूनियन B में से तुम डिफरेंस
ए डेल्टा बी, ए इंटरसेक्शन भी कर सकते हो। ए डेल्टा बी क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, 4 5 6 7, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। Then we have complement of a set. क्या हुआ सिया, टेंशन में क्यों आ रही हो? ये तो हो चुका होगा ना, हो चुका है स्कूल में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो अगर हमें किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए प्राइम लिख सकते हो, ए सी लिख सकते हो, इसका मतलब है नॉट ए। दैट वुड मीन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट के दो एलिमेंट जो कि ए में नहीं है। मान लो सेट ए इज 1 2 3, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 से लेके 10 तक। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? यस, इट विल बी 4 5 till 10। अगर हम कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? वापस ये आ जाएगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल के दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वापस वही सेट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब डिफरेंस समझ में आ गया था तुम्हें? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो सेट जो सारे सेट्स का सुपर सेट है। जैसे कि यहाँ मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, यूनिवर्सल सेट इज 1 to 10, सेट ए इज 1 to 3। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर, दोज एलिमेंट्स ऑफ यू यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। मतलब ए के अलावा वो सारे एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल सेट में है। हाँ, 10 ए में कहाँ है? वन, यूनिवर्सल सेट 1 to 10 है। टेल मी व्हाट विल बी यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट विल बी 5 कॉम्प्लीमेंट? जनरल, नॉट दैट एग्जाम्पल, इन जनरल यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सी द फॉर्मूला, इट इज यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू डिफरेंस यू, इट हैज टू बी 5। और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दैट इज यूनिवर्सल सेट। So isn't phi included in universal set? हम्म, Phi is not included in universal set. यूनिवर्सल सेट में के सबसेट में 5 होगा, एलिमेंट्स में 5 नहीं है ना। 5 इज नॉट अ पार्ट ऑफ 1 2 3 10। It would be definitely subset of universal set but not part of elements। तो हमने 4 ऑपरेशंस करी, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें I'll give you some set ABC and then I'll write some results which you need to verify are they correct or incorrect। ठीक है, ये लिख लिया सब लोगों ने? उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ट्रू और फॉल्स में बताना होगा, 10 क्वेश्चन अगर टाइम बचा आज तो। और ट्रू अगर तुम्हारा आंसर सही आएगा तो you'll get +1, इनकरेक्ट होगा तो you'll get -4। ठीक है, यस, सो दैट यू बी मोर केयरफुल। ये तो जेई में भी ऐसे ही होता है ना। जे में उल्टा होता है, +4 -1, हमारा है -1 माइनस +1 -4, ताकि तुम दिमाग का इस्तेमाल करोगे फिर। पहले एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो सेट ए इज,
तीन सेट मैंने दे रखे हैं, इनको कीप इन माइंड एंड यू वेरीफाई दीज रिजल्ट्स, दीज प्रॉपर्टीज। जो लेफ्ट एलएचएस सॉल्व करोगे, आरएचएस सॉल्व करोगे, दोनों इक्वल आएगा तो वेरीफाइड है, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड, इनकरेक्ट। ठीक है। There's no hurry, take your own time. यूनियन था एक, तो मैं यूनियन बताया था। कोई वेरीफाई नहीं करना ना ये, मतलब आया है। Still not audible.
यूनियन में तुम्हें सारे कंबाइन करने होते हैं। सपोज पहले तुमने बी इंटरसेक्शन निकाला, तो बी एन सी का कॉमन लिख लो यहाँ पे, है ना। देन यूल फाइंड यूनियन विद ए, यूनियन मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस ऑल्सो। सी इफ यू फाइंड एल एच एस, नव्या तुमने कर लिया पहला, आ जाओ बोर्ड पे करके दिखा दो। she'll do first LHS और first and then RHS also, पूरा प्रॉपर करके लिख के ना सेट के एलिमेंट्स लिख लेना। बी इंटरसेक्शन से 2 6 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन से 2 6 है नव्या, तुमने 2 लिखा है सिर्फ, और क्या 6 भी तो आएगा, 6 भी है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी करोगे तो 1 2 3 4 6 आ जाएगा। आगे समझ में आ गया, ब्रैकेट भी लगाओ। दैट मीन्स द फर्स्ट वन इज नॉट वेरीफाइड, इट्स इनकरेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना आ रहा है तुम्हारा, आरएचएस कितना आ रहा था, ये गलत हो गया वापस से। बी यूनियन सी कितना, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकाल रहे हो ना तुम। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स। अथर्व पहले का ये आ रहा है, एल एच एस इज 2 6, नहीं 1 2 3 4 6 एंड आरएचएस 1 2 3, यही है। Yes, sir. Got the same answer. तो फर्स्ट वन इज नॉट वेरीफाइड, क्रॉस लगा दिया मैंने। सेकंड कर लो अब। करो आओ। A difference B means those elements of A which are not in B. A difference C means those elements of A which are not in C. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन। So it's verified. So second one is verified.
दिव्या थर्ड हो गया, सर RHS कर रही हूँ। कर लो। लावण्या हाँ सर, थर्ड वाला हो गया। वेरीफाइड हो रहा है। हाँ वेरीफाइड हो गया। क्या आंसर आ रहा है सेकंड का? 134। नब्बे का तो कुछ और आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है? थर्ड का क्या आंसर है? LHS RHS? लावण्या सर 134। 134, ठीक है। सिया कर लिया थर्ड। दिव्या थर्ड क्या आ रहा है? सर मेरा नॉट करेक्ट आया है। ऐसा मत बोलो। सर वन मेरा LHS 2 आया है एंड RHS 1,3,4 आया है। RHS तुम्हारा बिल्कुल सही आया है। LHS में गलती क्यों हो रही है? सर पता नहीं। थर्ड का LHS देखो, बी इंटरसेक्शन सी चाहिए मेरे को। ए कितना है? 1 2 3 4। डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, है ना? बी इंटरसेक्शन सी कितना है बताओ? कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 6। 6 आ रहा है। अब दोज एलिमेंट्स ऑफ दिस विच आर नॉट हियर, कौन कौन से एलिमेंट इसमें जो इसमें नहीं है? ओह सर मैंने ऑपोजिट कर दिया था। हाँ, विल बी सेम। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। दोनों सही हैं ये। नाउ बेसिकली ये दो रिजल्ट्स हैं विच टेल्स अस दैट डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। देखो, डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। ए यूनियन बी बन, ए डिफरेंस बी आ गया। द ओनली थिंग इज, जब भी बाहर नेगेटिव साइन होता है ना एलजेब्रा में, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन बन गया। तो तुम इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। द ओनली थिंग इज, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर यूनियन था तो इंटरसेक्शन बन गया, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। The distributive property of difference over. हाँ, डिफरेंस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डिफरेंस is distributive over union and intersection of sets. Fourth, तुम तो सब कुछ करेक्ट करेक्ट बता रही हो। आज मूड में हूँ मैं। तैयारी हो गई है पूरी? फिजिक्स की तैयारी हो गई? सर 4th इज करेक्ट। थोड़े मतलब वो सारे नहीं करोगी? ठीक हो गया, वो असाइनमेंट ले लेना आज। हाँ, थर्ड करेक्ट आ रहा है, फोर्थ करेक्ट आ रहा है। यस सर। फोर्थ LHS क्या आ रहा है बताना? सर LHS equals to 1,2,3। 1 2 3। यस सर। एंड RHS क्या आ रहा है? सेम। यस सर। ओके, तुम लोग सब बोलो तो मान लेते हैं। सो फोर्थ इज करेक्ट। फोर्थ वाले में LHS RHS दोनों 1 2 3 आ रहा है। सब यही आ रहा है। Yes, sir. ओके, लावण्य फिफ्थ कर लिया। हाँ सर फिफ्थ हो गया। फिफ्थ वेरीफाइड है, नॉट वेरीफाइड है?
वेरीफाइड है। अच्छा, क्या है आंसर एलएचएस आरएचएस का? 1 2 3 4 6। जैस तुमने कर लिया? फिर अभी शुरू किए। चलो अभी मैंने लिख नहीं रहा हूँ। ब्रैकेट गलत लगा रही हूँ, अंडा मिलेगा तुम्हें? ऑमलेट खाती हो तुम? खा लेना फिर ऑमलेट बना के। सेट्स को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे। सी या फिफ्थ करना है बोर्ड पे? करो चलो, घबराई हुई तुम आज। कितने मार्क का होगा फिजिक्स टेस्ट? 35 प्लस आने चाहिए। सो वेरीफाइड है। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने कराया था ना, वो दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन। सेम आ रहा है। फिफ्थ वेरीफाई हो रहा है टू। अब ए यूनियन टू सिक्स करना है तुम्हें, तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा। हम्म, इसका आंसर बताओ। हम्म, ये रहा बोला। ऑल दीज क्वेश्चन आर असाइनमेंट, दिस। हाँ हाँ, कर लोगे तुम। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों वेरीफाइड होंगे, एंड दीज आर कॉल्ड, अगेन दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो हम बाद में यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ पे इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इंटरसेक्शन बी पे आ रहा है, फिर यूनियन आ गया, और वही इंटरसेक्शन सी के साथ हो रहा है। जैसे नॉर्मल एल्जेब्रा में होता है ना, 2 × 3 + 4 लिखोगे तो 2 पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वही हो रहा है, 2 × बी, फिर यूनियन A × बी, ये आ गया, फिर यूनियन A × सी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, परफेक्ट। तो दीज टू आर ऑल्सो वेरीफाइड। और यहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी में यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इट्स वेरी मच सिमिलर टू, लाइक इफ यू हैव 2 × A + B, देन यू राइट 2 × A + 2 × B। मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। द सेम वे इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। A × B यूनियन A यूनियन C, ए इंटरसेक्शन सॉरी, A × B इंटरसेक्शन A × C आ गया यहाँ पे। तो दीज टू आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज अगेन। पहला फोर्थ है इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो एज ए प्रॉपर्टी हम इनको यूज कर सकते हैं। जब तुम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे 12th क्लास में, काम आएगा ही है। सिक्स्थ, सो 6 नहीं होगा। बहुत नाइंसाफी है, मारो गोली, इसको हटाओ। हाँ, बाकी सब है। कैसी बातें कर रही हो तुम? गुमराह कर रही हो मैं? 10th वाला भी है।
सेवेंथ एंड एट्थ दे कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मानो हम ए यूनियन बी निकालें और वो हमेशा बी यूनियन ए के बराबर आएगा, है ना। इसको क्या बोला जाएगा? कम्यूटेटिव। अगर तुम 2 + 3 लिखो, इल बी सेम एज 3 + 2। दैट इज इफ यू चेंज ऑर्डर एंड इट रिमेन्स द सेम, वी कॉल इट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन इज कम्यूटेटिव ओवर numbers. लेकिन what about 2 - 3? Will it be equal to 3 - 2? No. No. The difference or subtraction is not commutative, है ना। इंटरसेक्शन का क्या होगा? A intersection B will be always B intersection A। कहने का मतलब intersection and union they are commutative। और जब दो से ज्यादा सेट्स होंगे तो ये कहलाएगा associative। तुमने एक बी का यूनियन निकाला सी के साथ, फिर ए का यूनियन कर दिया, द सेम एज ए का यूनियन बी के साथ, यूनियन सी के साथ। इफ somebody adds 2 with 5 and then add 8, या वो पहले 5 और 8 को ऐड कर ले, बात तो वही है। दैट सिमिलर ओवर हियर, इंटरसेक्शन में भी ये होता है। तो दीज टू आर रिजल्ट्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Union of sets is associative, intersection of sets is also associative। एंड लास्ट टू, किसी के पास कंप्यूटर्स है एज फिफ्थ सब्जेक्ट? नो। ये कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। डी मॉर्गन्स लॉज बड़ा सिंपल है, इसको याद करने का तरीका। ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को तुम अंदर ब्रैकेट खोल दो। ओनली थिंग इज जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंटरसेक्शन कन्वर्ट होके बन जाएगा यूनियन, और ये जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। और फिर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वापस सेम, ये आ गया। तो मतलब एक बार यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, यू कैन ऑलवेज गेट द आंसर। मान लो दिया हुआ है तुम्हें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बन जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन में, बी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। तो ये था। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गई है? अच्छा, मैं वो क्वेश्चन दे रहा था ना मैं, ठीक है। I'll write few questions, ट्रू और फॉल्स आंसर नहीं बताना, अपने पास लिख लेना, फिर एंड में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। मान लो हमें कोई सेट दे रखा है ए विच इज 1 2 1 3 4। there's some set A given to us, and the first question is, मुझे अभी आंसर मत बताना, आंसर अपने आप लिख, मैं क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, सोचना जोर लगा के दिमाग पे, है ना। फिर एंड में विल डिस्कस, ट्रू फॉल्स करना है हमें।
So when you write P bracket A, you Yeah, P, just this is write. P. This is P. So then what does it mean? Like just the set, right? Power set of A. Ten questions, correct answer +1, incorrect -4. छोड़ने पे -8. You have to answer. अगर छोड़ोगे तो हो सकता है -80 हो जाए मैक्स, मिनिमम मार्क्स. छोड़ना मना है. थोड़ा सोचना है बस. थिंक लाउडली. You're done. सोच लेना. दोबारा एक बार गो थ्रू कर लो. माइनस नहीं आने चाहिए मार्क्स. देख लो एक बार वापस से. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी. पता है ना ये. सावधानी हटी, दुर्घटना घटी.
अथर्व हो गए? So last two are left. Just done. Done, sir. ओके, So लावण्य, done. Done, sir. सिया, हो गए तुम्हारा? कर लो, एक बार चेक करो। हो गया? ऑल राइट, फर्स्ट बताओ, फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है या कुछ भी नहीं है? First is true. अथर्व तुम सही आंसर बताओ, ये गुमराह कर रहे हैं मुझे। फर्स्ट क्या है? I've got true as well. अरे क्या है? सिया का तो नहीं आ रहा ट्रू, लेकिन ट्रू है क्यों? वाई इट्स ट्रू? जस्ट First, sir, we use belongs to for elements and 1, 3 like subset होगा sir. 1,3 बिलोंग्स, अगर ये होता 1,3 बिलोंग्स टू ए, तो ट्रू होता या फॉल्स होता? True. ट्रू होता है ना। लेकिन यहाँ पे इसने लिखा है 1,3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। जब तुम पावर सेट ऑफ ए निकालोगे तो उसमें तुम इसके सारे सबसेट लिखोगे। दिस इज वन एलिमेंट है ना, दिस इज वन एलिमेंट। तो बेसिकली 1,3 सेट कंटेनिंग 1,3 ए का एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या आएगा? पावर सेट ऑफ ए में ए के सारे सबसेट्स आएंगे, तो उसमें ये होगा। तो बेसिकली सेट कंटेनिंग सेट 1,3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये ट्रू होता है ना। लेकिन इसने लिखा है 1,3 सेट डज नॉट बिलोंग टू पावर सेट ऑफ ए, देयरफॉर इट इज ट्रू। ये ट्रू हो जाएगा। तुम्हारा क्या था? फॉल्स? ट्रू? ट्रू लिखा था। मतलब उसका एलिमेंट है, पावर सेट का एलिमेंट है ये सबसेट है। और अगर इसको तुम क्रॉस कर दोगे तो इट्स नॉट ए सबसेट। तो ये पावर सेट ए का एलिमेंट होता, इसने बोला नहीं है, तो मतलब ये ट्रू है। अगर ये लिखा होता तो ये फॉल्स होता, दिस वाज फॉल्स। तो इसको कट कर दिया, वो ट्रू हो गया। सेकंड, So it's true. True. सेकंड का क्या आंसर है दिव्या? Sir, true. ट्रू? क्यों ट्रू? 5 एलिमेंट नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 4 है, 5 ये नहीं है। power Four elements है वो, क्योंकि ब्रैकेट में है। गुड, तो मतलब ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा। सो दिस इज, अगर ये होता इक्वल टू 2⁵ तो ये गलत होता। नॉट इक्वल टू मतलब इसको हमने वापस ट्रू कर दिया, ट्रू। So वैसे हाँ so वैसे भी this is number of elements of power set of A ना. हाँ, So अच्छा elements subsets. अगर 2⁴ होता तो फिर गलत हो जाता ना। नेक्स्ट थर्ड बताओ, इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा। क्या फॉर्मूला था वो? 2⁵ n ऑफ ए, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट, ये फॉर्मूला था। ए में कितने एलिमेंट है? ए में 4 एलिमेंट है, तो दिस इज 2⁴16। ये भी ट्रू है, +3 हो गए। नाउ यू कैन अफोर्ड टू गो फॉर वन इनकरेक्ट है। फोर्थ बताओ क्या हो रहा है? So false. False. 2,3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। 2,3 तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट है, तो सरासर झूठ है, फॉल्स। So फिफ्थ, हाँ,
So the third question I think मेरा गलत हो गया. So number of subsets of A would be 2. 2 raised to power 4. It would be 16 and then. हाँ, तुम कैसे गलती कर सकती हो? So मैंने 16 सोचा कि 16 होता. ये वाला फॉर्मूला यूज हो गया ना? ये power number of subset of power set of A will be 2 raised to power 2 raised to power n of A. What about 1 2 3 belong is subset of A? पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज 1 3 तो ब्रैकेट के अंदर है. सरासर झूठ है ये भी. सिक्स्थ, False. 1 2 4 belongs does not belong to power set of A. False. False. इट बिलोंग्स बिकॉज जब तुम ए के सबसेट बनाओगे, ए के सबसेट में कहीं ना कहीं 1 2 4 तो आएगा ना. तो अगर ये होता बिलोंग्स टू तो सही था, ये फॉल्स है ये. नेक्स्ट सेवेंथ, Hmm. So true. हाउ मेनी विल से ट्रू? ओके, So लावण्या वुड. false. फॉल्स किसने बोला? Lavanya. दिव्या एंड लावण्या. ये डिबेटेबल है, इसको देखते हैं अब. देखो, अगर तुम इसको हटा देते हैं अब, अगर हम पावर सेट ऑफ ए लिखें तो क्या आएगा? सारे सबसेट 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और फिर 1 3 डबल आएगा. ठीक है. तो अगर ये होता दैट सेट कंटेनिंग सेट 1 3 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो ये ट्रू होता है या फॉल्स होता? तो जब ये ट्रू है तो ये ट्रू कैसे हो सकता है? जब ये ट्रू है तो वो ट्रू कैसे हो सकता है? ये, अरे इसका एलिमेंट है, ये सबसेट में एक और आएगा. हाँ, ये दिल मांगे मोर. जब सबसेट बनाओगे तो इसमें 3 लग जाएंगे ये. ठीक है. ये ट्रू होता, दैट मीन दिस इज फॉल्स. सरासर झूठ है ये. जस्ट कितना हो गया? नेगेटिव आ गया स्कोर? सबका नेगेटिव तो नहीं आया होगा अभी. +5 -4. ओके, अभी तो एट्थ है. एट्थ बताओ. एट्थ. So true. So true. ये ट्रू है. नाइन्थ. False. False. ये तो फॉल्स ही है. False. एंड 10th. False. So false. ये भी फॉल्स. False. ठीक है, गुड. तो बेसिकली अब तुम्हें समझ में आ चुका है. नल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पावर सेट, ऑल दैट स्टफ इज ओके विद यू. तो अब तुम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो ना इसमें. क्वेश्चन 18 कर लो असाइनमेंट का, पेज 4 पे. कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है. या पहले 17 में करो, 17 एंड 18. So can we send the assignment again in the group for disappearing messages on? ऐसा मत करो. मैथ्स को तुम इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हो, डिसअपियर कर रही हो उनको. मैंने नहीं किए हुए अपने आप है. अच्छा, भेजता हूँ. तो ये बाद में ऑफ भी करते ना ग्रुप में, सारे असाइनमेंट्स जाते रहे. 1 मिनट.
मेरे पास भी गायब हो गया, पता नहीं हाँ मिल गया। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? 17 एंड 18 ना? ठीक है। सेवनटीन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना? हम्म। अभी बता दूंगा, ब्रेक। ठीक। होगा, एक और होना चाहिए मेरे ख्याल से ना, बिकॉज एलिमेंट्स हैं ये। तुम एक काम करो ना, पिछले उसी में ना, यूट्यूब चैनल में मैंने लास्ट ईयर के डाले हुए हैं। 26 27 का देख। अच्छा, तो अभी बता दूंगा। असाइनमेंट के एंड में आंसर दे रखे हैं, ठीक है। कर लेना कुछ। बी इंटू एफ ऑफ 91/x होगा शायद, या बी एफ 1/x होगा। इसमें क्या करते हैं, एक्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रिप्लेस एक्स बाय 1/x। एक्स को पूरे फंक्शन में 1/x से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा f1/x, ये हो जाएगा f(x). फिर इसको सॉल्व करके f1/x काट दो, फंक्शन f(x) आ जाएगा। सॉल्व कर लो। Yes, me, sir. हो गया? 17 सभी का हो गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें?
सर 18th में वो ए है क्या, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक और ब्रैकेट है उसमें। सर एक बार बोर्ड पे लिख दो, वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, शायद ये होना चाहिए, मिसप्रिंट है कुछ इसमें। सर आई थिंक 1,2 ब्रैकेट में नहीं है क्योंकि फिर आंसर्स नहीं मैच हो रहे। अच्छा, या तो फिर ये ऐसे होगा, वो मैं चेक कर रहा था। ये होगा फिर, है ना? यस। ये कर लो, चेंज कर लो। तो वन फिर कॉम। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढनी है ना, तो वो हम्म। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही ढूंढनी है। हम्म। अब ऐसे कर लो, नाराज मत हो। टेस्ट वेस्ट हो गया स्कूल में होने? वन बिलोंग नहीं, एलिमेंट है ना, वन बिलोंग्स टू है तो करेक्ट हो गया। हाँ, करेक्ट है तो। नहीं, ब्रैकेट अगर हो तो फिर गलत हो जाएगा ये, इनकरेक्ट हो जाएगा फिर तो ये सेट बन जाएगा। वन बिलोंग्स टू है तो करेक्ट है, बिकॉज ये है ना ये। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? फोर। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज बेसिकली फोर, but three, if I write three belongs to A, is it correct? Or four belongs to A, करेक्ट है? फॉल्स? कहाँ बताया था? नहीं आंसर। नहीं, ये तो इनकरेक्ट है, सरासर झूठ है ये तो। लेकिन मैंने इससे 3,4 सेट बिलोंग्स टू है तो ये करेक्ट होगा। थ्री इस सेट का पार्ट है, थ्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेट ए, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। हो गया सभी का? कर लिया तुमने? अक्षिता हो गए सारे? वेन डायग्राम।
Using Venn diagram, we can answer many questions easily, even probability also and permutation combination also. तो वेन डायग्राम में सेट को एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय rectangle like this. So Venn diagram में we represent a set by universal set by a rectangle and any other set which is part of this, because universal set is always superset of all the sets. So any set which is there will be shown inside this set by circle, or जैसे मान लो set A is 1 2 3, universal set is 1 2 3 till 10. तो A के अंदर विल शो 1 2 3 एंड बाकी सारे एलिमेंट बाहर लिख देंगे. कहीं भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट सेट इन वेन डायग्राम. अब मैं कुछ बना रहा हूँ वेन डायग्राम, उसको शेड करूंगा और फिर तुम्हें बताना है कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. हम उसके आंसर्स नहीं डिस्कस करें. किसके? वो तो इसमें कोई डाउट है किसी को? 18 में देखो आंसर पीछे है. अगर किसी में डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज तो आगे बढ़ते हैं. वेरीफाई कर लो एक बार आंसर सारे. असाइनमेंट के एंड में आंसर्स हैं. ठीक है, चेक कर लिए. I'll shade some part of the set and you do tell me ये क्या represent कर रहा है. शेडेड पार्ट क्या represent कर रहा है? A intersection B. ओके. A union B. तो इसको हम कार्डिनल नंबर के टर्म में भी ले सकते हैं, जैसे n of A intersection B, number of elements of A intersection B. This would be cardinal number of A union B. Can I write this as n of A plus n of B? देखो. So the common ones will also be. Yes, Common parts will be added twice. कॉमन दो in बार this. काउंट हो गए इसमें. इसमें ये वाले कॉमन में दो बार काउंट हो गए. तो नीड टू सब्ट्रैक्ट वंस. ठीक है, ये लिखते जाओ. ये n की जगह अगर मैं p लिख दूंगा तो इट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B. A union B would be n of A plus n of B minus n of A intersection B. A minus B. A difference B. माइनस अलाउड नहीं है. और बताओ उसके अलावा और कुछ सोच सकते हो? So A union B minus B. माइनस होता ही नहीं है. Difference B. मुझे बताओ, इफ आई राइट A intersection B complement, is it correct or incorrect? Are they equal or not? B का कॉम्प्लीमेंट है B के बाहर का, है ना?
इनफैक्ट मुझे कॉम्प्लीमेंट पहले बताना चाहिए था। अगर कोई सेट ए है तो जो बाहर वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो शेडेड पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट है बी के बाहर, और बी के बाहर का ए के साथ इंटरसेक्शन। तो ये भी सही है। और एज यू सेड, you can also write it n of a difference n of a intersection b। ये तीनों सही है। इस असाइनमेंट में तुम क्वेश्चंस करना, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक कर सकते हो। हम्म 50 तो नहीं, अभी वेन डायग्राम में किया नहीं ना। रिलेशन वाले कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो। 20 तो कर ही सकते हो, फर्स्ट 20 तक क्वेश्चन कर लेना, पीछे आंसर मैच कर लेना असाइनमेंट से। कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे हम, है ना। सो आई कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ट्यूसडे। एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Yes, sir.